حضرت جمالدین حاصی رحمۃ تعالی علیہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ تعالی علیہ کی سب سے پہلے خلیفہ ہے۔ آپ جب کسی کو خرقہ خلافت عطا فرماتے تو حکم صادر کرتے کہ حاصی چلے جاؤ اور میرے جمال الدین سے اس خلافت نامہ پر دستخط اور مہر لگوا کر لے آؤ۔ اسی حکم کے تعمیل میں حضرت علاؤالدین علی احمد صابر پاک علیہ رحمۃ اللہ حاصی روانہ ہو جاتے ہیں اور آپ حاصی پہنچ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر اور سواری لے کر ہی حضرت جمال الدین حاصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں گھس جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے ویڈیوز میں آپ نے سماعت کیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مرید حضرت بابا صابر پاک علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خرقہ خلافت عطا فرماتے ہیں، اور خرقہ خلافت عطا فرمانے کا آپ کا انداز کیا تھا، آپ نے بیان کیا، جیسے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجلس منعقد کرتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے اولیاء کاملین کی موجودگی ہوتی ہے، اور آپ تمام اولیاء کاملین کی موجودگی میں حضرت بابا صابر پاک علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بیٹھاتے ہیں، اور اسی محفل میں آپ خرقہ خلافت عطا فرماتے ہیں، اور پھر سر پر امامہ بھی باندھتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں، آپ اپنے معمول کے مطابق حکم فرماتے ہیں کہ خلافت نامہ لے کر حضرت جمال الدین حاصی کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں سے مہر لگوا کر اور دستخط کروا کر لے آؤ۔ تو آئیے اس کے بعد کا واقعات آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جمال حاصی حضرت بابا فرید گنج شکر کے سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت بابا صاحب کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ حضرت بابا صاحب جس کو خرقہ خلافت عطا کرتے تو پہلے اس کو ارشاد فرماتے تھے کہ پہلے حاصی جا کر خلافت زمانہ پر مہر لگوا لو، بغیر مہر کے کسی کو خلافت نامہ عطا نہ فرماتے تھے۔ حضرت شیخ جمال الدین حاصی رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ کے اولاد میں سے تھے۔ حضرت بابا کے خلفاء میں آپ سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ اخبار الاخیار میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت جمال سے حضرت بابا فرید کی محبت اور دلی تعلق کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک حاصی ضلع حصار میں ہے۔ آپ کے آگوش میں آپ کے 3 صاحبزادے بھی آسودہ خاک ہے۔ حضرت شیخ جمال الدین حاصی علیہ رحمۃ اللہ کیونکہ حضرت بابا صاحب علیہ رحمۃ اللہ کے اکابر خلفاء میں سے تھے، لہذا حضرت حاصی رحمت اللہ کو مرحمت نامہ خلافت پر مہر لگانے اور اس کی تصدیق کرنے کی ذمہ داری سپرد کر دی تھی۔ جو بھی حضرت بابا صاحب علیہ رحمت اللہ اپنے کسی مرید کو خلافت نامہ پر مہر فرمانے کے لیے حکم دیتے تھے تو حکم صادر فرماتے کہ جاؤ حاصی میں میرے جمال الدین کے یہاں، وہیں سے تصدیق کروا کے مہر لگوا کر لاؤ۔ چنانچہ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت اللہ کو خلافت نامہ مرحمت ہوا۔
जिसकी तस्दीक करने के लिए और मुहर लगवाने की खातिर हांसी रवाना कर दिया गया। चुनांचे उसी हुक्म के मुताबिक हजरत साबिर साहब हांसी की तरफ रवाना हुए, जिसका सबूत पेश खिदमत है। हजरत मखदूम साहब पाक पटन से सवार होकर हांसी रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो अपनी सवारी पर सवार ही खानकाह में दाखिल हो गए। हजरत कुतुब साहब ने आपका इस्तकबाल किया। हजरत मखदूम साहब सवारी पर सवार ही लबे फर्श तक तशरीफ ले गए। ये बात अगर कि हजरत जमाल साहब को नागवार गुजरी, फिर भी आपने कमाल इज्जत व एहतराम के साथ आपके फराइज मेहमानदारी अदा किए। दोनों बुजुर्गों ने एक साथ मगरिब की नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत मखदूम साहब ने अपनी जेब से खिलाफत और कुतबियत नामा निकाला और दिल्ली जाने का मुफस्सिल हाल बयान किया। हजरत साबिर हांसी पहुंचकर अपनी आमद की वजह बयान की तो इसी दौरान में आपसे ये करामत सादिर हुई। कौन सी करामत? आइए आप समाअत फरमाएं। उस रोज आंधी चल रही थी, गर्दो गुबार बहुत ज्यादा था। आफताब यानी कि सूरज गुरूब हो चुका था। रात की तारीख फैल रही थी, फैलनी शुरू हो गई थी। कुछ पढ़ा लिखा नहीं जा सकता था। कुतुब साहब ने फरमाया, इस वक्त मौका नहीं है, अब आराम फरमाइए, सुबह को मोहर व दस्तखत कर दिए जाएंगे। हजरत मखदूम साहब ने उसी वक्त मोहर व दस्तखत करने पर इसरार किया, चराग तलब किया। हवा जोर जोर से चल रही थी। हवा का झोंका आया, चराग गुल हो गया। हजरत मखदूम साहब ने अपनी उंगली पर कुछ पढ़ा, पढ़कर दम किया, मिसल समा के रोशन हो गई और फरमाया कि अब भी चराग बुझ जाएगा। हजरत शेख साहब ने आपकी इस हरकत और गुस्से पर बहुत कुछ गौर फरमाकर कहा कि अभी रोशनी कम है। साबिर साहब ने झिझलाकर फिर उंगली पर दम किया तो वह मिसल मसाल के रोशन हो गई। शेख साहब ने तब तो ख्याल फरमाया कि जब उनके गुस्सा और तंग मिजाजी का ये हाल है तो ये दिल्ली की कुतुबियत क्या करेंगे। 2-4 दिन में जलाकर खाक कर देंगे और दिल्ली बिला वजह तबाह व बर्बाद हो जाएगी। और साबिर से फरमाया कि भाई तुम तो बहुत जोशीले तबीयत के आदमी हो और दिल्ली वाले तुम्हारे गुस्से और जलाल की ताब ना ला सकेंगे। तुम जरा सी ही बात पर उसको जलाकर खाक सियाह कर दोगे। इसलिए मैं नहीं मुनासिब समझता कि तुम्हें दिल्ली में रखा जाए। फरमाकर सनद कुतबियत को चाक कर डाला। हजरत साबिर साहब जो ऐन मजहर जलाल थे, भला इस हरकत की ताब कहाँ ला सकते थे। गुस्सा में आग हो गए और जलाल में आकर फरमाया, तूने मेरी सनद को चाक कर दिया, यानी तुमने मेरी सनद को चाक कर दिया, मैं तुम्हारा सिलसिला चाक कर दिया। यानी तुमने मेरी सनद चाक कर डाली, मैंने भी तुम्हारा सिलसिला कुतुबियत
कता कर दिया, यानी कि चाक कर दिया, खत्म कर दिया। नादरीन, अभी तक आपने सुना हजरत अलाउद्दीन अली अहमद हजरत साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने खिलाफत सनहद पर मोहर लगवाने के लिए हजरत जमालुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में हासिल रवाना होते हैं और जाकर के हाल बयान करते हैं कि मैं बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह से आया हूँ और मेरी ये सनद है, आप इस पर मोहर लगवा दीजिए। उस वक्त शाम के टाइम था, गर्दो गवार उड़ रहा था, आंधी चल रही थी, चराग जलना मुमकिन नहीं था और रात भी हो रही थी, सूरज गुरूब हो गया था। आपने कहा साबिर पाक से कि आप ऐसा कीजिए, इस वक्त आराम करिए, सुबह को मैं दस्तखत भी कर दूंगा और मोहर भी लगा दूंगा। मगर आप चूंकि जलाली थे, आप जिद कर गए कि नहीं मुझे अभी करके दो। आपने फरमाया कि फिर चराग की कहाँ से लाए, चराग की तलब किया आपने। एक चराग लाई गई, उसको जलाया, मगर आंधी के झोंका आया और चराग जो है गुल हो गई। चराग गुल हो जाने के बाद फिर बाबा साहब ने कहा कि अब क्या होगा, अब तो नहीं हो सकता, अब तो अंधेरा हो गया। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपनी शहादत के उंगली पर कुछ पढ़ते हैं और दम करते हैं। आपके उंगली रोशन हो गया। रोशन हो जाने के बाद आपकी इस हरकत को देखकर हजरत जमालुद्दीन शेख रहमतुल्लाह ताला अलैहि सोचते हैं कि ये बंदा बहुत जोशीला है, ये दिल्ली को क्या संभाल पाएगा। आपने बहुत कुछ सोचने के बाद इरशाद फरमाया कि रोशनी कम पड़ रहा है, इससे नहीं होगा, मैं कल कर दूंगा दस्तखत। फिर साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप फिर कुछ पढ़ते हैं और फिर दूसरे उंगली पर दम करते हैं और वो उंगली इस तरह रोशन हुआ जैसे कि मसाल रोशन हो जाता है। तब हजरत जमालुद्दीन हासिर रहमतुल्लाह ताला अलैहि को और टेंशन होने लगी कि इसका तो अभी ये हाल है, ये दिल्ली को कैसे संभालेगा। जरा जरा सी बात पे इसका इतना गुस्सा आता है, ये तो दिल्ली को जलाकर बर्बाद कर देगा, खाक कर देगा, दिल्ली इसके हवाले करने के लायक नहीं है। आपने ये सब सोच करके और आपके खिलाफत नामा को फाड़ देते हैं, चाक कर देते हैं। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि आपकी इस हरकत को देखकर जलाल में आते हैं और आप अपनी जबान से फरमाते हैं कि तुमने मेरी सनद नमा को चाक किया है, जाओ इसी तरह मैंने तुम्हारे सिलसिला को चाक कर दिया, यानी कि आज के बाद तुम्हारे सिलसिला बंद हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा। नादरीन, तो यहाँ तक ये वाक़ियात आपने समाअत किया। देखिए अभी तक जो आप वाक़ियात समाअत कर रहे थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह तक था और हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि के इल्म की, तकवा की, परहेजगारी की, ये सब वाक़ियात आपने समाअत किया। मगर आप यहाँ से इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो हम सब इस वाक़ियात की फैज़ान से कलियर शरीफ के सरजमी पर पहुँचने वाले हैं और कलियर शरीफ जब पहुंच जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ का वाक़ियात पेश करूंगा। मतलब अब तक जो हमने वाक़ियात सुनाया ये सब हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बचपन से ले करके और आपको खिलाफत नामा हासिल करने तक जो आप बाबा फरीद के दरबार में रहे, खिदमत में रहे, यहाँ तक के वाक़ियात आपने समाप्त किया। अब जब आपको खिलाफत नामा मिल गया दिल्ली का, मगर दिल्ली के खिलाफत नामा फाड़ कर फेंक दिया गया, अब आइए इसके बाद क्या वाक़ियात है आप इसके अगले आने वाले वीडियोस में समाप्त करेंगे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।